Hi guys, welcome back to the channel, and in today's video we'll talk about whether you should add extra weight to your baggage allowance with any airline that you're choosing to come to Australia. And on that added extra luggage, should you be bringing things like dal, rice, atta or masalas as an international student or any temporary visa holder who is coming to Australia? So the short answer is no, do not waste money in buying extra kilograms, because the best you could do is probably add 10 kilos or 15 kilos of luggage, because I understand that because of COVID, a lot of airlines have reduced their baggage allowance from anywhere between 40 to 45 kilos, which was the original allowance, and they've brought it down to 30 kilos, and some airlines offer 25 kilos. I don't think it is a smart decision to add on luggage, and on that added luggage you will be bringing things like rice and atta, because you anyway get those things here. So I would advise that do not waste your money, because in my understanding, at least for every kilogram you'll be giving an additional 500 rupees. So I don't think it's worth the trade. That's the number one reason. And the number two reason is you are not allowed to bring pulses and grains to Australia, because when you're boarding a flight which is scheduled to land in Australia, you are required to give out declaration. So in that declaration form, there is a strict section that forbids you from getting pulses and grains, because the flora and fauna, that is the plants and animal kinds here in Australia, are completely different to that in other mainlands like India or the Indian subcontinent largely. So that is why the border security here, if you remember the whole Biosecurity Act that was being discussed because of the quarantine, that and other legislations here in Australia require that you do not bring things that are not native to Australian land. So that is why please make sure that you do not get any of these things, because you have two risks. One is you're loading unnecessary cost and luggage, you're wasting a lot of time and energy, and lastly, there is chance that you may be asked to completely discard those things in a bin, and you will not be allowed to carry those things to wherever you are staying. So for these reasons, I would say that do not waste money on bringing rice or atta or even masalas, because honestly, in my understanding, I think there you can easily get a 5 kilo of wheat flour, that is atta, for anywhere between $10 to $15 across Australia. So this price will be standard in Perth, Adelaide, as well as Sydney or Melbourne. So I don't think you'll be paying more than this for 5 kilos. And presuming that you are sharing the accommodation with a friend, or if you have your spouse with you, this cost will automatically get divided, and 5 kilos of atta will last for at least 2 weeks or 3 weeks, even if you're making rotis every day. And rice also, you get all kinds of brands here. You get India Gate, you get Rosanna, you get a couple of other brands here. So you have a very good sourcing of Indian ingredients. So please don't indulge in buying extra kilograms and getting all the Indian things here, because you already get them here at a very good price and a very good quality product as well. तो मेरी राय बहुत सिंपल है कि आप एक्स्ट्रा लगेज के चक्कर में ना पड़े. आप उससे मैं ये कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ बाइंग एक्स्ट्रा लगेज, आप एक्स्ट्रा लगेज अलाउंस, आप अपने साथ कपड़े ले आइए. जो भी आपके 30 किलोज़ जो आपका एयरलाइन आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर आप अपने जीन्स पैंट्स ले आइए, आपके फॉर्मल ट्राउज़र्स ले आइए, शर्ट्स, टी शर्ट्स, आपके अंडरगारमेंट्स ले आइए, आ जाओ. और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई गैजेट है तो उसी को यहाँ पे ले आइए. फिजूल की खर्चे ना करें. आप नया वहाँ पे अगर आप लैपटॉप लेने की सोच रहे हो, तो आपको वही लैपटॉप या उससे शायद बेटर लैपटॉप यहाँ पे सस्ते प्राइस में मिल जाएगी. तो आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखें प्लीज़. अगर आप अपने तरफ से लगेज के लिए अलाउंस बढ़ाना चाहते हो तो वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप यहाँ जिस दिन लैंड हो जाओगे ऑस्ट्रेलिया में, कोई भी सिटी में, चाहे वो एडिलेड हो, मेलबर्न हो, या सिडनी हो, या ब्रिस्बेन हो, या कोई और छोटा भी टाउन अगर आप जा रहे हो, वहाँ पर आपको डेफिनेटली इंडियन स्टोर मिलेंगे. आप उन इंडियन स्टोर्स में जाइए. आपको जो मैंडेटरी चीज़ चाहिए, जो अर्जेंटली चाहिए होता है, वो है सबसे पहली चीज़ मैगी. आपको मैगी 8 पैकेट वाला मैगी आपको $3 से $6 के बीच में मिल जाएगा. तो आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. 1 किलोग्राम में आप कितने मैगी ले आओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 8 के पैकेट आ जाएंगे. तो वो फिजूल के खर्च के बदले आप यहाँ पे आ जाओ,
कपड़े वपड़े ले आओ, अपने गैजेट्स ले आइए, आपके फ़ोन अगर आप, और नया फ़ोन भी ले आने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है वो ले आइए, क्योंकि यहाँ पर आप फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, वॉच, कोई भी चीज़ प्लान पर ले सकते हो, क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आओगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस है, डिस्काउंट्स है, तो आप उससे आप खरीदी कीजिए आपकी जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो बस समराइज़ मैं करूँगा, आपको यहाँ पर आटा 5 किलो का आपको 10 से $15 के बीच में मिल जाएगा। आपको राइस की बैग्स 5 किलो की मिलेंगी, 10 किलो की मिलेंगी, 15-20 किलो की मिलेंगी। आपको 5 किलो का राइस डिपेंड करता है कि आप कौन सा राइस लोगे। अगर आप एक राइस का क्लास आता है जिसका नाम है सोना मसूरी, जो कि थोड़ा बहुत चीप राइस होता है, जो एवरीडे यूज़ के लिए जनरली हम साउथ इंडियंस यूज़ करते हैं, तो आपको मैक्सिमम $12 में 5 किलो आ जाएगा। तो आपको, अगर आप 2 जने रह रहे हो, तो 5 किलो शुड बी एटलीस्ट आपके साथ वो लास्ट करेगा कम से कम 3 हफ्ते के लिए। और 5 किलो का आटे का बैग भी मिलेगा, 10 किलो का आटे का बैग मिलेगा। यहाँ पर आटे के 2 ब्रांड बहुत पॉपुलर है जो इंडिया में भी है, जिनका नाम है, एक तो है आशीर्वाद आटा और दूसरा है पिल्सबेरी। उसके अलावा यहाँ पे और भी ब्रांड्स है, बट ये 2 पॉपुलर है और इनके काफ़ी चीप प्राइस में भी मिल जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली आपको यहाँ पे सारे ग्रेन्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे राजमा मिलेगा, आपको ब्लैक चना मिलेगा, आपको वाइट ग्रेन मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। तो आपको दाल भी मिलेगी यहाँ पर, तुअर दाल जो होता है, तुअर दाल 1 किलो का आपको पैकेट मिल जाएगा $3 में। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि मैं इंडिया से ले आऊँगा मेरे फर्स्ट मंथ की जो राशन है। पहली बात तो आपको बॉर्डर पे लोग अलाउ नहीं करेंगे। बॉर्डर इन द सेंस, जब आप लैंड करोगे, मान लीजिए अगर आप एडिलेड आ रहे हो, तो एडिलेड एयरपोर्ट जब आप पहुँचोगे तो वहाँ पे आपको अपने लगेज का डिस्क्लोजर करना पड़ता है। तो जब आप डिस्क्लोजर करोगे, उसमें आपको बताना पड़ता है कि हाँ भाई, मेरे पास ग्रेन्स है, मेरे पास ग्रेन्स में मेरे पास दाल है, एक्सेट्रा। तो आप जब वो डिस्क्लोजर देंगे तो तुरंत आपका लगेज साइड लिया जाएगा और वो दाल को डायरेक्ट डस्टबिन में डाला जाएगा, और हो सकता है कि आपको फ़ाइन भी लगाया जाएगा। तो आप प्लीज़ केयरफुल रहिए। अगर आपको घर से कोई चीज़ लानी है, तो जैसे मैंने पहले कहा, आप अपने फ़ोन, लैपटॉप वगैरह ले आओ, अपने कपड़े ले आइए, अपने ग्रूमिंग की चीज़ें ले आओ। और अगर आपको बहुत ही कुछ खाने का शौकीन है आप, और घर को आप मिस करेंगे ऐसे अगर आपको लग रहा है, तो आप अपने साथ लड्डू, खाकरा, ऐसे जो भी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड चीज़ें होती है वो ले आइए। रॉ आइटम्स मत लाइए, क्योंकि आपको, अगर आप कोई फ्रूट्स ला रहे हो, वेजिटेबल्स ला रहे हो, या सीड बेस्ड आइटम्स ला रहे हो, जैसे कि मैंने बोला कि आप कोई दाल ला रहे हो या चना ला रहे हो, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, खाली पीली आपको फ़ाइन लगाया जाएगा। तो ये सब अवॉइड कीजिए। और मेरा राय यही रहेगा फाइनली कि आप बिल्कुल एक्स्ट्रा वेट के लिए आप बिल्कुल पैसे खर्च ना कीजिए। और बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही ब्रीफ वीडियो है, बहुत रिपीटेटिव है, क्योंकि एक सेंस ऑफ इमोशनल फैक्ट है। क्योंकि मैं जब यहाँ आने की तैयारी कर रहा था, उस टाइम पे तो कोविड इतना बड़ा सीन नहीं था, क्योंकि मैं 2020 फेब में यहाँ पे आया था, तो तब जस्ट कोविड अपना रूप ले रहा था। तो उस टाइम पे मेरे भी काफ़ी सवाल थे कि मेरे हिसाब से, मतलब राइस ले जाना है कि नहीं, या फिर मसाले ले आना है कि नहीं। मसाले आपको यहाँ पर 2-3 ब्रांड्स है, जो कि MDH है, एवरेस्ट है, और भी 2-3 हैं। जैसे कि साउथ इंडियन लोगों के लिए यहाँ पर MTR एक ब्रांड है, और ईस्टर्न करके एक ब्रांड है। तो आपको काफ़ी सारी इंडियन ब्रांड्स यहाँ पे ऑलरेडी मिलती है, सेम पैकेजिंग के साथ, सेम क्वालिटी के साथ, और काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाता है। तो आप इनमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि शॉपिंग के लिए भी आपको बाहर पड़ना पड़ेगा। चांसेस है कि कोविड आपको बाहर कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, तो ये सब से आप सेफ रहो, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो अपनी फैमिली के साथ। ये जो लास्ट फ्यू डेज़ बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया है, इस टाइम को अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करो, और अपने पैसे बचाओ, क्योंकि आप एक्स्ट्रा किलोग्राम्स पे जो खर्च करने वाले उसको बचाओ। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट डे शॉप करो, मैगी लेना मैगी ले लो, आटा, सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरा राय बस यही है कि आप एक्स्ट्रा वेट ना लो, मतलब जो भी 5-10 किलोज़ का अलाउंस एडिशनल मिलता है उस पर खर्चा मत करो, और नए फ़ोन मत ले आओ, यहाँ पे सब मिल जाएगा। बस आते टाइम अपने कपड़े, अपने ग्रूमिंग की चीज़ें ले आओ, आई थिंक वो सफिशेंट होगा। अगर आपको बहुत कुछ घर की चीज़ें पसंद है, या घर में कुछ बन चुका है, तो आप वो नमकीन चीज़ें ले आ सकते हो। लेकिन कोई भी रॉ आइटम्स, जैसे सब्ज़ी हो गया, सब्ज़ी इन द सेंस वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स, उनको आप मत ले आओ, क्योंकि वो आपको बॉर्डर पे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो बस ये है मेरा ओपिनियन वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा बहुत मदद करेगा। आपको कोई भी डाउट्स होंगे पैकिंग के रिलेटेड, या फिर जो भी चीज़ें अलाउड है या नहीं अलाउड है,
उसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि विदिन 2 और 3 आवर्स में रिप्लाई कर देता हूँ नोटिफिकेशन मुझे जब भी मिलता है कमेंट का। तो कोई भी आपके डाउट हो, चाहे आपके दोस्तों के डाउट हो, आप कमेंट्स में छोड़ दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड लक।